Hello, welcome all of you in this YouTube channel. You are watching this video of an interesting story of a tragical drama Dr. Faustus written by Elizabethan dramatist Christopher Marlowe. At first, we will discuss all the characters in Dr. Faustus. After that, listen this story in brief as well. Now, let us start. Faustus. First character, Faustus, the tragic hero and a protagonist of the play. He is a contradictory character who is both eloquent and ambitious, but also prone to blindness and wasting his power. Lucifer, the prince of devil who rules hell, he convinces Faustus to give up his prayers to God and make a pact with him. Next character, Mephistopheles, Lucifer's henchman who serves Faustus and satisfies his demands. Next, Beldes and Cornelius, magicians who teach Faustus the dark arts and necromancy. Old Man, an enigmatic figure who appears in the final scene. Next character, Good Angel, tries to save Faustus' soul by convincing him to repent and turn away from the devil. Next character, Evil Angel, the opening force who convinces Faustus that repentance is not possible. Next, Wagner, Faustus' servant. Wagner uses his master's book to learn how to summon devils and work magic. Next character, Clown, a clown who becomes Wagner's servant. Next, Three Scholars, Faustus' student who come in search of him early in the play. Next character, Robin, an hostler who provides a comic contrast to Faustus. He and his friend Rafe learn some basic conjuring. The Pope, the head of the Roman Catholic Church and a powerful politician figure in the Europe of Faustus' day. Next character, Emperor Charles V, the most powerful monarch in Europe, whose court Faustus visits. Next character, Knight, a German nobleman at the emperor's court. Bruno. Next character, a candidate for the papacy supported by the emperor. Next character, Duke of Van Holt, a German nobleman whom Faustus visits. Next character, Martino and Frederick, friends of Benvolio, who reluctantly join his attempt to kill Faustus. चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूरी स्टोरी इन ब्रीफ में। यह नाटक कोरस से स्टार्ट होता है और यह कुछ लोगों के द्वारा गाया जाता है। कुछ मेंबर्स होते हैं, 2, 3 या फिर 12, 15 तक संख्या हो सकती है। इन संख्या में अधिकांश लोग बूढ़े होते हैं जो भविष्यवाणी देने में ज़्यादा आगे रहते हैं। कोरस में से एक वृंदगान होता है जो अधिकांश दुखांत नाटकों में शुरू से आखिरी तक लिखा जाता है। राइटर के द्वारा अपनी ट्रेजेडी में कोरस लिखना हीरो या हीरोइन के जीवन काल से परिचित कराना होता है, उसके ऊपर आने वाली परिस्थितियों और दुखांत भाव के दृश्य को एज अ प्रेडिक्शन दिखाना होता है। कोरस से नाटक में ऑडियंस के मन में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भाव उत्पन्न करता है। कोरस बताता है कि फास्टस का जन्म निम्न वर्ग में हुआ था, लेकिन उसने जल्दी ही विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। हालांकि सीखने में उसकी रुचि और उसके अभिमान ने जल्द ही उसे भूत विद्या की ओर अग्रसर कर दिया था। नाटक के पहले दृश्य में फास्टस ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ अपनी ऊब और अधीरता व्यक्त करता है और निष्कर्ष निकालता है कि केवल जादू ही सीखने लायक है। वह अपने नौकर वैगनर को जादूगर बाल्देस होता है उस और कॉर्नेलियस के पास लौटने के लिए कहता है, जो कुछ समय से उसे जादू में रुचि दिलाने की कोशिश कर रहे थे। जब वह प्रतीक्षा करता है तो उसे एक गुड एंजल मिलता है जो उसे इस रास्ते पर हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो एविल एंजल होती है वो उसे प्रोत्साहन करती है कि कर लीजिए, अपने मन का जो भी करना हो।
वालिस और कर्नेलियस जब आते हैं और घोषणा करते हैं कि यदि फास्टस खुद को जादू के लिए समर्पित करता है तो फास्टस की शिक्षा और बुद्धिमत्ता वाले किसी व्यक्ति के साथ वास्तव में महान चीज़ें संभव हो सकती हैं। लेकिन गुड एंजल और बैड एंजल दोनों आते हैं। गुड एंजल उसे समझाती है कि ये ऐसा करना गुनाहगार होंगे तुम और ये पाप होता है, लेकिन बैड एंजल उसे समझा देते हैं कुछ नहीं पाप होता है, कुछ भी करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है और अगर अपने खुद को खोने की ज़रूरत पड़ेगी तो खुद को खो दिया जाएगा, लेकिन आज का जो समय है उसमें जिया जाए। जब फास्टस जादूगरों के साथ भोजन कर रहा होता है तो दो विद्वान फास्टस की अनुपस्थिति को नोटिस करते हैं और वैगनर से उसके ठिकाने के बारे में पूछते हैं। जब वैगनर उसे बताता है कि वाल्डेस और कर्नेलियस के साथ में है तो विद्वानों की चिंता और ज़्यादा होने लगती है कि जादूगरों ने उसे और ज़्यादा भ्रष्ट कर दिया है और वे विश्वविद्यालय के रेक्टर को सूचित करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद फास्टस एक शैतान को बुलाने का प्रयास करता है जो मेफिस्टोफेलिस के नाम का होता है। फास्टस का मानना है कि उसने उसे बुलाया है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस कहता है कि वह अपनी मर्जी से आया है और वह लूसीफर की सेवा करता है और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। फास्टस लूसीफर और नर्क के बारे में मेफिस्टोफेलिस से सवाल करता है और पूछता है कि लूसीफर से बात करने और वापस लौटने के लिए जाते समय तो क्या हो सकता है। फास्टस ये भी पूछता है कि लूसीफर क्या उसके मन का कर सकते हैं। अगला दृश्य एक हास्यपूर्ण प्रतिबिंब है जिसमें वैगनर दो शैतानों को बुलाता है, उसके साथ वह जोकर के रूप में सेवा करके डराता है। ये हास्यास्पद दृश्य इसमें दिखाया जाता है क्योंकि इसके बाद बहुत ही बेभत्स दृश्य आने वाला होता है। जब मेफिस्टोफेलिस वापस आता है और फास्टस अपने खून से एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर भी करता है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि 24 साल तक उसकी सेवा करेगा, जिसके बाद लूसीफर उसका यानी फास्टस का शरीर और आत्मा दोनों लेंगे। इस तरीके से मेफिस्टोफेलिस कह देता है कि मैं ही तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे शरीर दोनों को मैं अपने स्वामी जो लूसीफर है उनके पास ले जाऊंगा। एक बार अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद फास्टस एक पत्नी मांगता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस कहते हुए मना कर देता है कि शादी सिर्फ एक औपचारिक खिलौना है। वह ज्ञान की पुस्तकें मांगता है और मेफिस्टोफेलिस एक पुस्तक प्रदान कर देता है। इसी हास्य दृश्य में रॉबिन एक हॉस्टलर ने एक जादू की किताब चुरा लेता है रॉबिन और उसके साथ शरारत की योजना बनाता है। फास्टस डगमगाने लगता है और भगवान के बारे में सोचने लगता है और अच्छे और बुरे स्वर्गदूत फिर से आने लगते हैं। लूसीफर उसे उसके अनुबंध पत्र की भी याद दिलाने की कोशिश करता है और उससे 7 घातक पापों के प्रदर्शन के साथ उसका मनोरंजन करता है। फास्टस और मेफिस्टोफेलिस फिर यूरोप की यात्रा करते हैं, अंततः रोम पहुंचते हैं जहां वे पोप के साथ चाल चलते हैं। इसके बाद रॉबिन और राफे ये संस्करण और डिक नाम से दूसरी संस्करण उन्होंने निकाली थी क्रिस्टोफर मार्लो ने, एक प्याला चुराने के लिए पकड़ जाने पर मेफिस्टोफेलिस को बुलाते हैं जो आता है और फास्टस से मिलने के लिए लौटने से पहले गुस्से में उन्हें जानवरों में बदल देता है। वह इस किताब के 2 संस्करण दिखाए गए हैं। ए संस्करण में सम्राट फास्टस से नरमी बरतने के लिए कहता है और वह नरमी बरतता भी है, और बी संस्करण में एक लंबा दृश्य है जिसमें सूरवीर और उसके दोस्त फास्टस पर हमला करते हैं। सभी के सींग दे दिए जाते हैं। फास्टस अपनी चाल से मेफिस्टोफेलिस के माध्यम से उनके सिर पर यानी खोपड़ियों पर सींग उगा देता है। दोनों संस्करणों में फास्टस फिर एक घोड़े के व्यापारी पर चाले चलता है। फास्टस और मेफिस्टोफेलिस फिर ड्यूक और डचेस ऑफ वैन होल्ट के लिए एक जादू का शो करने की पेश करते हैं कि मैं एक जादू करना चाहता हूँ। इस तरह खेलते कूदते और अपने मन का काम करवाते करवाते 24 साल लगभग पूरे हो जाते हैं तो वह अपनी सारी संपत्ति वैगनर को दे देता है। वह कुछ छात्रों के लिए हेलन ऑफ ट्रॉय को बुलाता है और जब वह फिर से पश्चाताप करने के बारे में सोचता शुरू करता है तो लूसीफर से अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करता है और हेलन को अपने प्रेमी के रूप में मेफिस्टोफेलिस से मांगता है। मेफिस्टोफेलिस एक आत्मा को हेलन का रूप रख करके उसके सामने पेश करता है, लेकिन फास्टस समझ जाता है कि यह तो आत्मा है, तो इसलिए वह फास्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है यह तुमने गलत किया है।
अंतिम दृश्य में फास्टस कुछ विद्वानों के सामने स्वीकार करता है कि उसने अपनी आत्मा का सौदा किया था और उनकी प्रार्थनाओं के बावजूद शैतान उसके लिए आते हैं। शैतान आकर के उनकी आत्मा को ले जाते हैं लूसीफर के पास। फास्टस बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन ईसा मसीह की पूजा भी करता है और सेंट्स जो है पवित्र संतों की पूजा करता है, लेकिन वहाँ कौन सुनने वाला, क्योंकि इसने अपने खून से बॉन्ड लेटर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसी कारण मेफिस्टोफेलिस और उसके जितने भी फॉलोवर्स थे इसकी आत्मा को और इसके शरीर को लूसीफर के सामने पेश करते हैं। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।